Okay. In the last class, we have discussed about uh, parameters for finding the electrical intensity. Fine. Uh, we have studied in the last class. We have also studied about the linear charge density, which is lambda, that is charge per unit length. Sigma, surface charge density, that is charge per unit surface area, and rho, that is the volume charge density, that is charge per unit volume. Yes, today we will discuss about the electric field intensity due to a uniformly charged thin ring. How we can find out the electric field intensity due to a uniformly charged thin ring, that thing we will study today. Fine. Suppose this is the uniformly charged thin ring I have taken. This ring is having the total charge, suppose plus q charge it is having. It means the uniformly charged thin ring is having the total positive charge, that is plus q, suppose. Now we can place this uniformly charged thin ring in the two ways. One is uniformly charged thin ring can be placed in this way, parallel to the horizontal, and in another way we can take this uniformly charged thin ring परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल इन दिस वे. गेटिंग माय पॉइंट? तो मान के चलो ये यूनिफॉर्मली चार्ज थिन रिंग जो मैं लिया हूँ, इसको मैं ऐसे रखा हूँ, ये यूनिफॉर्मली चार्ज थिन रिंग है और ये इसका एक्सिस है. अगर ये इसका एक्सिस होगा तो ये फॉर्म में आ गया. अब सपोज दिस इज द यूनिफॉर्मली चार्ज थिन रिंग एंड दिस ring is having the center at O, suppose. Fine. And P is a point we have taken on the axis, and at this point I want to find out the electric field intensity. Suppose the distance of this observation point P from the center of the ring is equal to x, suppose. Fine. ये distance x है suppose. तो directly we cannot find the electric field intensity at the point of B. In which way we can calculate? We have to divide this uniformly charged thin ring into a huge number of small elements, and for a particular small element we have to find the electric field intensity at the point of B first. After that we have to take the integration. It means we have to use the calculus method. From the beginning, from class 11th we are studying whenever we are calculating anything, then we have to use the calculus method. Getting? Okay. Now suppose the radius of this ring is equal to, I am taking A. This is the radius and this radius is suppose A. Getting? Now whatever the things I have taken here, just I want to mention here. Let us consider a uniformly charged thin ring, having center at O, and let OA is the radius of the ring. Let A is the radius of the ring, and this distance of separation between the observation point and the center is equal to suppose x. So OP I am writing, this is x. Getting? Now we have to take the small element first to find the electric field. So let us consider a very small element dl, and this dl element is having the charge dq, suppose. Fine. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, let us consider a small element dl having the charge dq, suppose. Fine. If this charge is very small, now we know that this charge will behave as the point source charge, and we know that
ड्यू टू ए पॉइंट सोर्स चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू बीटा क्यू अपॉन आर स्क्वायर. Beta is the electrostatic force constant we have studied earlier. Fine. So due to the dq charge, when we want to find the electric field intensity at the point of P, then we need this distance also. And suppose this distance I am taking r. Fine. And dq is the positive in nature. We assume this one. So due to the positive charge, the electric field intensity is always away from that positive charge. So electric field intensity will be directed towards this direction. This is the dE vector I am taking. Fine. And this dE vector I want to find out first. Fine. So electric field intensity at T due to the dq charge. Electric field intensity at T due to dq charge will be how much? We know that this dE we can write beta electrostatic force constant charge per r square, charge divided by r square. So dq divided by r square we can write. This is and again we know that this charge we have to use. First we have to understand here. अगर मैं इस रिंग को काट के सीधा कर दूं, now it will be a line segment. अगर ये line segment होगा तो we have to use the one parameter linear charge density or lambda here. Are you getting this point? Okay. Now we know that lambda is equal to dq upon dl. So in case of dq we can write lambda into dl. Fine. So मैं इसको लिख सकता हूँ this is equal to beta into lambda dl divided by r square. Why I am writing this one? As we know, suppose this is equation 1 I am taking. Why I am writing this one? As we know that dq or lambda is equal to, I am writing lambda is equal to dq upon dl. So dq will be how much? Lambda into dl. So in case of dq I am writing lambda dl. So d is equal to, we are getting beta lambda dl upon r square. Getting? This is the electric field intensity we got. And electric field intensity is a vector quantity. Its direction we got towards this direction. Suppose I told this d vector makes an angle of theta with the axis of the ring. If this angle is theta, then this d has two components we can take. One is along the horizontal direction or along the axis we can take dE cos theta, and second one just perpendicular to this dE cos theta towards this direction, and this component will be dE sin theta. Yes. In this way we can take the two components of this dE. One is dE cos theta along the axis of the ring, and second one is the dE sin theta which is perpendicular to the axis of the ring. Fine. Okay. Now we have to understand here. I want to find the net electric field intensity at the point of P. Yes. So ये जो dl element हम लोग लिए हैं, we can take the another dl element just symmetrically opposite to this dl. Yes. So ये भी एक dl element बनेगा यहाँ पे अगर लेंगे तो, और इस dl के पास भी चार्ज होगा dq. यस. और क्योंकि ये सिमेट्रिकली जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में वही dl एलिमेंट है और dl एलिमेंट का चार्ज को हम dq लिए हैं, तो यहाँ पे जितने भी dl एलिमेंट होंगे हर dl एलिमेंट का चार्ज कितना होगा? dq. तो इस dl एलिमेंट का भी चार्ज कितना होगा? dq. तो इस dq की वजह से जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे तो मुझे ये डिस्टेंस जरूरत पड़ेगा. तो यहाँ से मैं ये डिस्टेंस ड्रॉ कर दिया. गेटिंग माय पॉइंट? तो ये डिस्टेंस जब मैं ड्रॉ करूंगा, ये तो ये डी वेक्टर इधर आएगा, डी वेक्टर. समझो चीजों को. ये जो dq है, ये dl जो है और ये dl है, ये सिमेट्रिकली ऑपोजिट है. तो इसका मतलब है
ये डिस्टेंस भी, अगर ये r है तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा, दिस इज r, एंड इफ दिस DE मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा विद द एक्सिस, देन दिस DE विल आल्सो मेक द एंगल ऑफ थीटा विद द एक्सिस, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो इस DE का भी दो कंपोनेंट हो सकता है, इस DE का दो कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस DE cos theta again, and along and perpendicular to the axis in this direction we can take the another component again, this one is d sin theta, d sin theta। अब देखो DE का वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, बीटा लैम्डा dl अपॉन r स्क्वायर, फाइन, ये तो फिक्स है, चाहे इस एलिमेंट के लिए हो, चाहे इस एलिमेंट के लिए हो, या चाहे कोई भी एलिमेंट के लिए हो, ये DE का वैल्यू फिक्स है। लेकिन अब देखो थीटा, थीटा देखो ये थीटा जितना है ये थीटा उतना है, तो इसका मतलब है d sin थीटा का ये वाला वैल्यू और ये d sin थीटा का वैल्यू सेम, बट बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर इन द डायरेक्शन, सो इट मींस दिस d sin थीटा एंड दिस d sin थीटा विल बी कैंसिल्ड आउट। अब हमें यहाँ पे समझना है, यहाँ पे खाली क्या ये दो DL एलिमेंट है, आंसर नो, यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट, ऐसे यहाँ पे भी एक DL एलिमेंट होगा, इसका जस्ट सिमेट्रिकली ऑपोजिट में एक DL यहाँ भी होना चाहिए, और इस DL का भी इस DL के लिए जो D बनेगा, उस D का D cos थीटा कंपोनेंट एक्सिस की तरफ जाएगा और D sin थीटा फिर, और ये दोनों DL को जो हम देखेंगे उसका जो D होगा, हर दोनों का D cos थीटा कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस जाएगा, बट D sin थीटा कंपोनेंट फिर इक्वल एंड अपोजिट होकर कैंसिल आउट हो जाएगा। इस तरह हम लोग ये कर सकते हैं कि जितने भी यहाँ पे DL एलिमेंट होंगे, हर DL एलिमेंट का जो DE बनेगा, हर DE का D sin थीटा कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे इक्वल एंड अपोजिट होने के कारण। इसी को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये बात समझ में आया हमें? All the D sin theta, all the DE sin theta component will be cancelled out, will be cancelled out, being equal and opposite, equal and opposite, माने हर D sin थीटा इक्वल एंड अपोजिट होने के कारण कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो जब हम यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, then only we have to take the integration of D cos theta. Are you getting this point? So we can write here net electric field intensity at T due to the ring will be how much? Will be how much? Integration of, or one minute, this one, okay, will be this E is equal to integration of only D cos theta we have to take. Fine. Why I am not taking D sin theta? Understood this point? सारे के सारे DL एलिमेंट का तो D sin theta कंपोनेंट कैंसिल आउट हो गए हैं, इक्वल एंड अपोजिट हो गए, तो खाली बचा सारे के सारे D का D cos theta कंपोनेंट, और सारे D cos theta कंपोनेंट एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड है। It means all the D cos theta components are directed along the same direction. So whenever we want to find out the net electric field intensity, then we have to add all the D cos theta component, and add करने का तरीका क्या है? Integration. So I am writing E is equal to integration of D cos theta. Are you getting this point? Okay. But DE we have already calculated here. This DE is equal to beta lambda dl upon r square. In case of that DE, we can put this value. By putting this value, how much we can get? Integration of beta lambda dl upon r square into cos theta है, तो into cos theta कर दिया। Are you getting? ये वाला वैल्यू को वहाँ पे पुट कर दिया मैंने। अच्छा, ये जो cos theta है, ये cos theta कितना हो सकता है? थोड़ा सा डायग्राम पे देखते हैं। If this angle is theta, then this angle will be how much? Theta. Why? Vertically opposite angle. ये देखो, ये अगर vertically opposite है, if this angle is theta, this is a right angle triangle. Why? This angle is 90 degree. If this is a right angle triangle, now cos theta will be how much? B upon H.
B upon H. It means in case of cos theta we can write X divided by R. So this implies that E is equal to, we can write integration of beta lambda dl upon R square into X divided by R. R into R square, this is R cube. So this can be written as integration of beta lambda dl upon R cube into X. But now R is how much? R. In this right angle triangle we can apply the Pythagoras theorem. Okay? If we apply Pythagoras theorem, then R will be how much? This R will be x square plus a square root over, it means whole to the power 1 upon 2. Are you getting this point? So in case of R we can put this value. So I am writing this E is equal to beta integration of beta lambda dl upon x upon how much? R cube. In case of R we can put x square plus a square whole to the power 1 upon 2. क्यूब है तो टू द पावर 3 upon 2 बन जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा x square plus a square whole to the power 3 by 2. This is suppose, so this one we are getting. Now जितने भी कांस्टेंट है सारे कांस्टेंट को बाहर निकाल देते हैं इंटीग्रेशन को. बीटा इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट 1 upon 4 pi epsilon naught 9 into 10 to the power 9 Newton meter square per kg square. This is a constant, so it can be taken out from the integration. लैम्डा चार्ज पर यूनिट लेंथ, इट मींस 1 मीटर में जितना चार्ज है दैट इज फिक्स्ड. इट मींस लैम्डा इज आल्सो ए कांस्टेंट, सो लैम्डा कैन आल्सो बी टेकन आउट फ्रॉम द इंटीग्रेशन. x is the distance of separation between the observation point and the center, so it is fixed, so x is also a constant. x square plus a square, here x and a both are constant, so denominator part will be also a constant, so this part also can be taken out from the integration. So this can be written as beta lambda x divided by x square plus a square whole to the power 3 by 2 constant, so I have taken outside the integration. Now into integration of only dl part we got, and we know that integration of dl means what? dl सारे dl को अगर हम ऐड करेंगे then this will be the circumference of this particular ring, and circumference is 2 pi r. Here the radius is a, so 2 pi a we can write. इंटीग्रेशन ऑफ dl की जगह में तो वैल्यू को पुट कर देना. So e we can write beta lambda x divided by x square plus a square whole to the power 3 by 2 into इंटीग्रेशन ऑफ dl की जगह में 2 pi a. Can I write this? Okay. अब यहाँ पे एक चीज देखो, 2 pi a circumference, lambda चार्ज पर यूनिट लेंथ. इसका मतलब 1 मीटर में जितना चार्ज होता है हम उसको ले रहे हैं लैम्डा. सो 2 pi a में कितना चार्ज होगा? 2 pi a into lambda. So 2 pi a into lambda क्या हो जाएगा? This is the total charge of this ring, and total charge of the ring how much we have taken? Q. तो इसके जगह में मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? मैं इसको एक काम करता हूँ. So this can be written as beta x divided by x square plus a square whole to the power 3 by 2. 2 pi a into lambda को अलग लिख दिया. 2 pi a into lambda इसको अलग कर दिया. 2 pi a into lambda की जगह मैं q लिख सकता हूँ, तो ऊपर क्या होगा? q into x. So this implies that e can be written as beta qx divided by x square plus a square whole to the power 3 by 2. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट ऑफ P ड्यू टू द यूनिफॉर्मली चार्ज थिन रिंग, हाउ मच वी आर गेटिंग? बीटा qx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होल टू द पावर 3 by 2. ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. It should have both magnitude and direction, and we know that we have calculated the magnitude beta qx divided by x square plus a square whole to the power 3 by 2. What will be the direction?
and we can observe in this particular diagram, then all the electrical intensity is directed along the axis. तो मैं इसका डायरेक्शन को इसमें एक बार वेक्टर साइन लगा दूं तो एक डायरेक्शन में क्या लिख सकता हूँ, along the axis. So this is the electrical intensity due to the uniformly charged thin ring we got. Are you getting? Okay. अब देखो इसको ना थोड़ा सा और स्टडी करते हैं, इसको थोड़ा सा हम कुछ केसेस को कंसीडर करते हैं. देखो केसेस, फर्स्ट केस में यहाँ पे ये ले रहा हूं, अगर मैं x को डिक्रीज करूंगा तो क्या होगा. इसका मतलब क्या है, अगर मैं P पॉइंट को यहां से सेंटर की तरफ लाऊंगा तो x का वैल्यू डिक्रीज होगा, और अगर x का वैल्यू डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी क्या होगा. और दूसरी चीज, अगर ये P पॉइंट अगर सेंटर में आ जाए, अगर मैं सेंटर में इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी निकालना चाहता हूं तो इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी कितना होगा. तो अगर मैं सेंटर में निकालना चाहता हूं तो P को मैं यहाँ लाते 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 अगर मैं सेंटर में पहुंच जाऊंगा तो अब ये x कितना हो गया, 0. ये जब मैं P को यहाँ लाऊंगा सेंटर की तरफ तो x का वैल्यू डिक्रीज होता जाएगा. जब मैं P पॉइंट को लाके सेंटर में रखूंगा तो ये x का वैल्यू 0 हो जाएगा. अगर x 0 हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0. समथिंग इनटू 0 ऑलवेज इट विल बी 0. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट. तो मैं यहाँ पे पहला केस ये ले रहा हूं, एट सेंटर what will happen, x is how much, 0. If x is 0 then what will be the electric field intensity. अगर x 0 हो गया, न्यूमरेटर पार्ट 0 हो गया तो 0 upon something always 0. So electric field intensity is equal to 0. It means at center electric field intensity we are getting 0. थोड़ा सा याद करो, क्लास 11th स्टैंडर्ड में ग्रेविटेशन चैप्टर में हम लोग पढ़े थे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज हाउ मच, 0. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ द यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन रिंग हाउ मच वी गॉट, 0. आर यू गेटिंग. थोड़ा सा कंपेयर करो. सेकंड केस में ले लो, अगर मैं P पॉइंट को बहुत दूर ले जाऊंगा तो क्या होगा. अगर मैं P पॉइंट को बहुत दूर, इस सेंटर से बहुत दूर ले जाऊंगा तो ये रिंग कैसे ट्रीट करेगा, ये रिंग एक पॉइंट की तरह ट्रीट करेगा. जैसे मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, ये एक पेन है, इस पेन का लेंथ है मान के चलो 10 सेंटीमीटर. अगर इसका लेंथ 10 सेंटीमीटर है तो ये तो हमें दिखता है, हम पास में खड़े हैं तो ये पेन हमें दिखता है, इसका साइज हमें समझ में आता है. लेकिन अगर मैं इसको ऐसा रख देता हूँ, अगर मैं आपको बोलूंगा इससे 2 किलोमीटर दूर ऊपर चले जाओ और वहां से इस पेन को देखो, तो जब हम वहां पे जाके इस पेन को देखेंगे तो ये कैसा दिखेगा, ये पॉइंट की तरह दिखेगा. क्या प्रैक्टिकली ये पॉइंट हो गया, नो. इसका साइज तो अभी भी उतना है 10 सेंटीमीटर, लेकिन हमें वहां पे क्या दिखा, हम लोग वहां पे दूर, जब हमें कंडीशन अप्लाई की कि हम यहाँ से बहुत दूर चले गए और वहां से देख रहे हैं, देन दिस विल, ये पॉइंट नहीं होने के बावजूद ये पॉइंट की तरह हमें दिखा. और जो हमें, अगर हमें दिख रहा है ऐसा तो हमें इसको पॉइंट की तरह ट्रीट करना पड़ेगा. तो एग्जैक्टली इन द सेम वे अगर मैं ये P पॉइंट को बहुत दूर ले जाऊंगा तो ये रिंग का जो रेडियस है, ये रेडियस हमें पता भी नहीं चलेगा और ये टोटल का टोटल रिंग एक पॉइंट की तरह दिखेगा हमें. तो इफ इन दैट केस दिस रेडियस वी कैन नेग्लेक्ट. तो सेकेंड केस में मैं लिख रहा हूं, इफ P lies very far away from the center O, then what will happen, then this x is very large. If this x is very large, then this a can be neglected and a square tends to 0. a square tends to 0. अगर a square tends to 0 बन जाएगा तो देखो a square कहाँ पे है, डिनोमिनेटर. अगर ये a square को मैं 0 कर दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा. तो नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल बी how much, बीटा
q इंटू एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर 0 बन गया, तो एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, 2 विल बी कैंसिल्ड आउट, एक्स क्यूब बन जाएगा। ये बात समझ में आया? एक एक्स ऊपर से एक एक्स नीचे से काट दो, तो ये क्या बन गया, दिस कैन बी रिटन एज बीटा क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना बन गया? सो दिस इंप्लाइज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वी आर गेटिंग बीटा क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। और ये किसका फॉर्मूला है? ड्यू टू ए पॉइंट सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू वी नो बीटा क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है, और यहाँ पे हमें मिला ई इज इक्वल टू बीटा क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। इससे क्लियर इंडिकेट होना चाहिए, हमें समझ में आना चाहिए, इट मींस when the P point will be very far away from the center of the ring, then this ring will behave like a point and the charge of this ring will behave like a point source charge. That is why E is equal to beta q upon x square we are getting here. Understood this point? अच्छा, एक केस और हम कंसीडर कर सकते हैं। देखो अब हमने ये पता चला, अगर मैं ये इस T पॉइंट को इन्फिनिटी डिस्टेंस ले जाऊं तो क्या होगा? x को अगर इन्फिनिटी कर देंगे तो E इज इक्वल टू समथिंग अपॉन इन्फिनिटी दैट इज 0, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 बन गया। अच्छा, सेंटर में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 मिला, इन्फिनिटी डिस्टेंस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें 0 मिला, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे मैक्सिमम है? The position at which the electric field intensity will be maximum, that position we want to find out. Then in which way we can find out? थर्ड केस में वहां पे ले रहा हूं for maximum electric field intensity. Getting understood the point? ठीक है, इरेज कर रहा हूं। ओके, देखो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे मैक्सिमम है? दैट मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जहाँ पे होगा वो पोजीशन मुझे फाइंड करना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हाउ मच वी आर गेटिंग? बीटा क्यू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। ठीक है, ओके। देखो थर्ड केस फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। मैथ्स में हम लोग ये स्टडी किए हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू, जब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हम लोग पढ़े हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़े होंगे आप, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जब आप मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू निकालते थे तो कैसे निकालते थे? तो आंसर कि हम डेरिवेटिव वैल्यू को ही जीरो कर लेते हैं। जैसे मान के चलो मैं आपको बोला कि विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, तो मैं यहाँ पे कंडीशन क्या लिख सकता हूँ? कंडीशन फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेरिवेटिव ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन निकाल रहे हैं, सो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमें जानना जरूरी है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये डेरिवेटिव ऑफ ई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, कितना? बीटा क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? दिस इंप्लाइज दैट डी बाई डी एक्स ऑफ ई की जगह में पुट कर दिया मैंने बीटा क्यू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू हाउ मच? 0। अब जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल देते हैं, सो दिस इंप्लाइज बीटा इंटू क्यू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
होल टू द पावर 3/2 इज इक्वल टू 0। अब ये बीटा क्यू उधर ले लो, 0 बन गया, बीटा क्यू 0 अपॉन ये बीटा क्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 0 अपॉन समथिंग दैट इज 0। सो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। सो दिस इंप्लाइज दैट d by dx of how much, x divided by x square plus a square whole to the power 3/2 is equal to 0। यस, ओके। यहाँ पे सिंपल है, डेरिवेटिव निकालना है मुझे। अच्छा, डेरिवेटिव का डिवीजन फॉर्मूला हमें आना चाहिए। डेरिवेटिव का डिवीजन फॉर्मूला हमें क्या बताता है, सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड होल डिवाइडेड बाय सेकेंड का स्क्वायर। तो फर्स्ट फंक्शन यहाँ पे कौन है, न्यूमरेटर को फर्स्ट फंक्शन लिया जाता है, डिनोमिनेटर को सेकेंड फंक्शन लिया जाता है। तो सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड होल डिवाइडेड बाय सेकेंड का स्क्वायर। तो फॉर्मूला पुट करता हूँ यहाँ पे। सेकेंड फंक्शन यहाँ पे कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 इंटू डेरिवेटिव सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट फंक्शन क्या है, एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, तो डेरिवेटिव d by dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 होल डिवाइडेड बाय सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू सेकेंड फंक्शन होल टू द पावर 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा होल स्क्वायर होल क्यूब। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? नहीं बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 होल स्क्वायर, तो 2 कट जाएगा, क्यूब इक्वल टू कितना है, 0 इक्वल टू 0। ठीक, सो दिस इंप्लाइज दैट, अब देखो, अब एक स्टेप और कर देते हैं। अच्छा, अब देखो ये डिनोमिनेटर पार्ट को राइट साइड में ले लो, 0 के साथ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0 इंटू समथिंग 0 बन जाएगा, तो इसको डायरेक्ट राइट में लेके हम 0 कर देते हैं इसको। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस एक्स इंटू, अब देखो डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x अगर होगा तभी जाके n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 हम जानते हैं। तो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ जितना विद रिस्पेक्ट टू उतना होना चाहिए, बट यहाँ पे नहीं है। इट मीन्स वी हैव टू अप्लाई द चेन रूल, और चेन रूल के हिसाब से हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, 0 इज इक्वल टू 0। अब देखो डेरिवेटिव ऑफ जितना टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू उतना के फॉर्म में आ गया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। यहाँ पे x की जगह में कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x दैट इज 1। यहाँ पे पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1 दैट इज 1 इंटू एक्स टू द पावर 0 एंड x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 वी नो। सो डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x विल बी 1 माइनस x इंटू इट इज इन द फॉर्म ऑफ x टू द पावर n, फाइन। तो n इंटू n यहाँ पे कितना है, 3/2 n इंटू एक्स की जगह में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स की जगह में इतना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर n माइनस 1, सो 3/2 माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ, इसको हम अलग अलग कर देते हैं, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स दैट इज 2x, ए स्क्वायर इज ए कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है हमेशा, so 2x minus 0 that is 2x is equal to 0. Can I write this? Okay, this 2 and 2 will be cancelled out, so this implies that x square plus a square whole to the power 3/2 minus 3 into x that is x square
into x square plus a square whole to the power 3/2 minus 1. How much? 3 minus 2 upon 2, that is 1 upon 2, is equal to how much? 0. एक काम करो, इसको ये वहां ले लो, राइट साइड में ले लेते हैं. सो ये क्या बन जाएगा? दिस इंप्लाइज 3x square और इसको ऐसे x square plus a square whole to the power 3/2 is equal to 3x square into x square plus a square whole to the power 1 upon 2. गेटिंग माय पॉइंट? अब एक काम करो, ये वाला पार्ट को यहाँ ले आते हैं, तो ये वाला पार्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है, अगर यहाँ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा. एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ भी है, तो पावर को माइनस हो जाएगा पावर. सो दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? 3x स्क्वायर. अब 3/2 माइनस 1/2 दैट इज 2/2, दैट इज 1. सो ये क्या बन गया? x square plus a square is equal to 3x square. कैन यू राइट? तो अब x square को वहां ले लेते हैं. सो ये बन जाएगा 3x square minus x square is equal to a square. So 3x square minus x square, that is 2x square is equal to a square. So x square will be how much? A square upon 2. So x will be how much? Root over of a upon root over of a square upon 2, that is a upon root 2, that is plus minus a upon root 2a. रूट ओवर मतलब प्लस और माइनस दोनों होता है. तो इसका मतलब क्या मिला हमें? x is equal to plus minus a upon root 2. what does it mean? We have to understand this one. देखो, प्लस a by root 2 क्या बता रहा है? इसका मतलब सेंटर से राइट की तरफ पॉजिटिव, सेंटर से लेफ्ट की तरफ नेगेटिव. सेंटर से राइट की तरफ a अपॉन रूट 2, सेंटर से राइट की तरफ a अपॉन रूट 2 डिस्टेंस अगर जाएंगे तो जो पोजीशन आएगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा. ये कंडीशन किसके लिए निकाल रहे हैं? मैक्सिमम के लिए. उसी तरह सेंटर से a बाई रूट 2 लेफ्ट की तरफ भी आएंगे तो जो पोजीशन आएगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो are you getting? In this way we can find the position at which the electric field intensity becomes maximum. अच्छा, अब ना इसको लेके हम एक ग्राफ भी तो ड्रॉ कर सकते हैं. देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ. देखो सपोज हम ये x एक्सिस है, x डैश एंड ये y एक्सिस है. y डैश. अब ये मान के चलो y, और ये जो रिंग लिए हैं, रिंग को ऐसा यहाँ पे रखे हैं, मान के चलो वो सेंटर यहाँ पे इसका ओरिजिन है, ओरिजिन पे मान के चलो वो सेंटर है. तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हुआ? सेंटर पे 0 हुआ था, याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0. तो सेंटर पे 0. अब a बाई रूट 2, राइट की तरफ हम a बाई रूट 2 आ जाते हैं, ये मान के चलो a बाई रूट 2 डिस्टेंस है. उसी तरह लेफ्ट की तरफ भी a बाई रूट 2 डिस्टेंस आ सकते हैं, a बाई रूट 2 डिस्टेंस. a बाई रूट 2 डिस्टेंस पे हम जानते हैं ये इज मैक्सिमम, और a बाई रूट 2 डिस्टेंस में अगेन इट इज मैक्सिमम. ये तो अब कैसा बन जाएगा हमारा ग्राफ? तो यहां से ये ऐसा बन जाएगा, यहां से ये ऐसा बन जाएगा. Are you getting this one? In this way we can draw the graph again here along the x-axis. What we have taken? X position we have taken, and along the y-axis what we have taken? Electric field intensity we have taken. Are you getting this point? तो देखो इस ग्राफ से क्लियर इंडिकेट हो जाना चाहिए, सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है? 0. टुवर्ड्स राइट a बाई रूट 2 डिस्टेंस चले जाएंगे तो जो पोजीशन आएगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम है. और टुवर्ड्स लेफ्ट अगर हम a बाई रूट 2 डिस्टेंस आ जाएंगे तो जो पोजीशन आएगा वहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम है. और हम अगर इन्फिनिट डिस्टेंस चले जाएंगे तो वहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 बन जाता है. तो फिर ऐसे डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया. ठीक है, तो इसका मतलब सेंटर से थोड़ा दूर जाएंगे तो एक पॉइंट आएगा जहां पे मैक्सिमम हो जाएगा, उससे अगर आगे जाएंगे तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होते हुए
जीरो हो जाएगा इन्फिनिटी डिस्टेंस पे। उसी तरह लेफ्ट की तरफ भी है। आर यू गेटिंग? दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड thin ring. In this way we can find out. Are you getting this point? If any confusion, then you can ask. इसको मैं ग्राफ between E and X.